afternoon. We're back to another video of DevOps playlist. So our today agenda is what is Linux? Linux, how we use Linux in our daily life. Some important topics in Linux, like these topics, we will cover this in our video. And as we talk about the previous video, how to deploy any application with IIS web server, and in this video we will cover how to deploy any application with the help of Linux. So let's get started. So our first topic is what is kernel. So let me tell you first कि kernel होता क्या है. Kernel एक core component होता है operating system का. It is very main part of operating system. Linux kernel, Windows का भी kernel होता है, Linux का भी kernel होता है, but Windows के kernel को हम नहीं देख सकते because Windows जो है closed source होता है, and the Linux kernel is open source. Linux is the open source, and it manage system resources. ये manage करता है system के resources को like CPU, memory, devices like keyboard, mouse. मैं माउस हिला रहा हूँ अपना, ठीक है, मैं कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरे कंप्यूटर को कैसे पता लग रहा है? विद द हेल्प ऑफ कर्नल. ओके. एंड ब्रिज को प्रोवाइड करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ओके. एंड यूजर से जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो सकता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता है यूजर से. इट इज कर्नल. कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में नीचे लिख देता हूँ. ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज कर्नल डेफिनेशन. ओके, वेट अ मिनट. Yeah, so the kernel is core component of operating system, and it manage system resources, system resources like CPU, memory, and devices like mouse, mouse and keyboard. Yeah, keyboard, and it provide a bridge between. It provides a bridge between software and hardware. It does not interact with user directly. So it is a definition of kernel. Kernel window जो होता है. Okay, so this is the definition of kernel. Windows और Linux. Windows का भी कर्नल होता है, Linux का भी कर्नल होता है. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, Linux एक कर्नल होता है. Okay, so I think you understand this. So let's move to the another topic. What is operating system? Let me tell you. Okay, so our next topic is what is operating system. Let me tell you what is operating system. It is a collection of softwares. ये softwares का collection होता है. ओके. एंड ये मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को. हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के? सीपीयू, जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क. दीज आर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज. एंड इसके अंदर कर्नल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल आता है, और ये यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. ओके, सो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. द ऑपरेटिंग सिस्टम is the collection of softwares and that manage system, sorry, hardware computer hardware resources. Okay, and it include, ये include करता है, किसको include करता है? The kernel को. And it directly interact with user. Okay, it directly interact with users. Okay, this is the definition of operating system. So I think ये भी सबको समझ में आ गया होगा. Let's move to another topic, another definition. तो ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए हैं. Let's move to this topic. क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स टूल. क्या क्या चीजें हैं ये? इन तीनों चीजों के बारे में हम जानते हैं विस्तार से, शुरू से.
ओके, सो द सेकंड थिंग इज ओपन सोर्स, कि भाई ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का कोड हमको गिटहब पर मिल जाता है, वी कैन इजीली फाइंड इट्स कोड ऑन गिटहब, एंड बहुत सारे लोग मिलकर इसको फ्री और सिक्योर बनाते हैं, एंड ये अवेलेबल रहता है 365 डेज। ओके, एंड ये बेहतर होता है बिकॉज क्लोज सोर्स के टूल्स, आपको जितने भी कमांड लाइन इंटरफेस के टूल्स मिलेंगे वो सब बल्कि नहीं होंगे, विंडोज की तरह, क्लोज सोर्स की तरह। ओके, वो लाइट वेट होंगे और फास्ट रन करेंगे, दैट्स व्हाई लिनक्स इज वेरी गुड फॉर कोडिंग। ओके, सो लेट मी राइट दिस, ये क्लाउड ओपन सोर्स होता क्या है, समझा तो मैंने आपको दिया है। ओपन सोर्स थिंग इज कोड गिटहब पर मिल जाएगा, एंड द सेकंड थिंग इज many people make it free and secure, 365 days available. Okay, okay, so let's talk about open source tools. Open source पे tools कौन कौन से होते हैं? Like हमारा पहला Linux, second one is Terraform, and the third one is Kubernetes. Okay, ये सब टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, लाइक Terraform जो क्या होता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव टूल होता है, Kubernetes क्या होता है, ठीक है, Azure Kubernetes सर्विसेज क्या होती हैं, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे। ओके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, जिससे ये अच्छा दिखे। एंड ये जो भी मैं आपको ड्रॉ डॉट आईओ एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, दिस इज ड्रॉ डॉट आईओ, एंड इसमें जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। ओके, सो अवर फोर्थ टॉपिक इज लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं, ये क्या वाला है भाई। ओके, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं वो जान लेते हैं इसके अंदर। देखो, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स बेस्ड होता है वो होता है हमारा उबंटू ओएस, उबंटू ओएस, ठीक। द सेकंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज काली लिनक्स, काली लिनक्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज पैरेट ओएस, पैरेट ओएस, एंड द फोर्थ वन इज, ओके, पेज को थोड़ा कम कर लेते हैं, द फोर्थ वन इज एंड्रॉइड ओएस। एंड्रॉइड ओएस क्या होता है? जो हमारे फोन होता है ना, एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, आईओएस फोन्स होते हैं, जो एंड्रॉइड फोन होता है वो भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, उसमें भी लिनक्स का यूज होता है। तो दीज आर फोर टाइप ऑफ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज उबंटू ओएस, सेकंड वन इज काली लिनक्स, थर्ड वन इज पैरेट ओएस, एंड फोर्थ वन इज एंड्रॉइड ओएस। और भी होते हैं बट ठीक है, फोर चार बहुत ही है। ये टेक्स्ट को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चीज भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इन लिनक्स एवरीथिंग इज अ फाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। या अभी हम धीरे धीरे जानेंगे कि लिनक्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर इन लिनक्स, कैसे हम साइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में आईआईएस वेब सर्वर के थ्रू करा था, इसमें हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिनक्स। अनदर टॉपिक इज मेन कमांड्स इन लिनक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम जानेंगे इस टॉपिक में कि लिनक्स की कमांड्स क्या क्या होती हैं, मेन कमांड्स, और उनका यूज केस क्या होता है, वो रियल लाइफ सिनेरियोज में हमें कैसे काम में आएगा। देखो, ये जो ऊपर के चार टॉपिक थे ये टॉपिक बेसिक थे, ये पर हमको जानना जरूरी था, बट अब जो भी टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी होंगे और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इन्हीं चीजों का यूज होगा। सो मेन कमांड्स इन लिनक्स, लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। ओके, लिनक्स कमांड्स, ठीक। द फर्स्ट कमांड इज हु एम आई, यूजर प्रोफाइल। ये हमको बताता है यूजर की प्रोफाइल के बारे में।
इन सब कमांड का यूज कर कर हम अभी देखेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे ये कमांड्स यूज होती हैं लिनक्स में। और मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज के अंदर ही आप लिनक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। या देयर इज एन ऑप्शन। सो द सेकंड कमांड इज pwd, मींस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। थर्ड कमांड इज ls। ls मींस शो ऑल फाइल्स इन फोल्डर। ये कमांड शो ऑल फाइल्स इन फोल्डर, ये कमांड हमको बताती है कि फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं। ओके। फोर्थ कमांड इज cd कमांड। So next command is cd command. cd means change directory. ओके, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करना। अभी हम चिंता मत करो, डोंट वरी। अभी हम सारी कमांड्स का यूज देखेंगे, कैसे कैसे कमांड यूज होती है। cd डॉट डॉट, नेक्स्ट कमांड इज cd डॉट डॉट, मीन टू गो बैक। ओके। सिक्स कमांड इज mkdir। mkdir means to create new empty folder। जैसे हम विंडोज में फोल्डर बनाते हैं, विंडोज में कैसे फोल्डर बनाते हैं, वही डायरेक्टरी में जाएंगे, ठीक है, सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर जाकर हम नया फोल्डर बना देंगे, न्यू करके फोल्डर, ये हमारा न्यू फोल्डर बन जाएगा। बट लिनक्स में तो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब सारी चीज कमांड लाइन इंटरफेस से चलेंगी, तो वो करना हमको यहाँ पर पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है mkdir। नेक्स्ट कमांड है टच कमांड। टच टच कमांड से क्या होता है, क्रिएट न्यू एम्प्टी फाइल। फाइल बनाने के लिए यूज होती है ये mkdir फोल्डर, एंड टच कमांड इज फॉर फाइल। फाइल का फॉर्मेट कुछ भी रख सकते हैं, डॉट टीएक्सटी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ओके, वो हमारे ऊपर। एट कमांड इज नैनो कमांड। नैनो कमांड का यूज, इट इज अ सीएलआई फाइल एडिटर। ये एक सीएलआई का फाइल एडिटर होता है। जैसे विंडोज का फाइल एडिटर नोटपैड, नोटपैड पर हम चीजें लिख देते हैं, वैसे ही लिनक्स का नोटपैड क्या हो गया, सॉरी, लिनक्स का फाइल एडिटर होता है ये। इट इज द सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस फाइल एडिटर। नाइन्थ कमांड इज कैट कमांड। तो कैट कमांड क्या होता है, टू सी व्हाट इज इनसाइड दैट नैनो फाइल। इस कमांड से हम देख सकते हैं, जो नैनो कमांड से हमने फाइल एडिटर बनाया है, जिसके अंदर हमने कुछ भी लिखकर स्टोर कर दिया है, कैट कमांड से हम देख सकते हैं कि उस नैनो कमांड में, उस सीएलआई फाइल एडिटर में क्या लिखा हुआ है। टू सी व्हाट इज इनसाइड द nano, to see what is inside। Yeah, 10th command is cp, copy, to copy। mv, to move। Wait a minute, 11th command is to, sorry, 11th command is mv, to move, मूव करने के लिए फाइल्स को या फोल्डर को इधर से उधर। 12th command is rm, to delete, to remove file, to remove file। Okay, rm means to remove file। 13th command is rm hyphen r। Okay, rm hyphen r means to remove folder। ये पूरा फोल्डर उड़ाने के लिए होता है आरएम माइनस आर। और आरएम टू रिमूव फाइल, एक पर्टिकुलर फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं उससे। 14 कमांड इज ग्रीप। ग्रीप मींस सर्च, सर्च वर्ड्स इन फाइल। एंड 15th command is grep hyphen I। and the 15th command is grep hyphen I। sorry, spelling mistake, grep hyphen I, to search words, case sensitive words, case sensitive words। केस सेंसिटिव वर्ड्स तो हमको पता ही है क्या क्या होते हैं। लाइक कोडिंग लैंग्वेजेस में भी हमने ये सारी चीजें सीखी है कि अगर आपने सीखा हो कोई कोडिंग लैंग्वेज, तो केस सेंसिटिव वर्ड्स का मतलब होता है कि बिग ए अलग है एंड स्मॉल ए इज डिफरेंट।
ओके, so these are case sensitive words. ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड बढ़ा देता हूँ। इतनी कमांड्स हम देखेंगे अभी फिलहाल के लिए कि यही मेन कमांड्स होती हैं वैसे। अगर हमने यही याद कर ली है तो जरूरत नहीं पड़ेगी डेवऑप्स में कि कोई और कमांड्स पढ़े। दैट्स व्हाई दीस कमांड्स आर सफिशिएंट। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कमांड से 15 कमांड तक क्या क्या यूज होता है। हु एम आई मीन्स यूजर की प्रोफाइल को शो करता है ये। पीडब्ल्यूडी कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो हमको बताएगा पीडब्ल्यूडी कमांड। एलएस कमांड शो ऑल फाइल्स इन फोल्डर। ठीक है, सारे फाइल्स हमको शो कर देगा फोल्डर के अंदर। फोल्डर में स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना। सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। अब हमको बैक जाना है। ठीक है, बैक जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर हमको विंडोज में बैक जाना होता है, हम किसी फोल्डर में बैठे हुए हैं, हमको जैसे मैं इस फोल्डर में हूँ, मैं इस फोल्डर में हूँ, मेरे को बैक जाना है तो मैं बैक यहाँ से जाऊंगा, फॉरवर्ड जाना है मैं यहाँ से जाऊंगा, बट लिनक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए चेंज डायरेक्टरी टू गो बैक cd hyphen cd dot dot mkdir to create new empty folder, dash command to create new empty file, nano command it is a CLI file editor, okay, like notepad, okay, like notepad. That command to see what is inside that nano file, pp to copy, mp to move, rm to remove file, फाइल को डिलीट करने के लिए, rm hyphen i sorry rm hyphen r to remove folder, फोल्डर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, grep to search words in file, grep hyphen i to search case sensitive words। ओके, तो हमारा ये हो चुका है मेन कमांड्स। देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप सो कमांड्स इतनी ही रखते हैं अभी के लिए एंड बाद में देखेंगे और सब कमांड्स वैसे और कम कमांड्स का यूज करेगा नहीं, हम पर डेवलप्स के लिए कमांड सफिशिएंट है। एंड अभी इन सब का हम केस यूज केस देखेंगे कैसे कैसे यूज होती हैं ये, वो जब देखेंगे जब हम साइट को मतलब वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे वेब सर्वर के थ्रू, मिडलवेयर के थ्रू। ठीक है, तो या लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। मेन कमांड हमारी हो गई है, इसको भी टिक लगा देते हैं यहाँ पर। मेरा ड्रॉ डॉट आयो पागल हो जाता है कभी भी। रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important topic, relative path and absolute path। Okay, let's do this, relative path and absolute path। ठीक है, अब हम जानते हैं रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में क्या क्या बला है ये। तो ये तरीका है लिनक्स में कमांड्स इधर उधर जाने का। ओके, पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट पाथ के बारे में, ये क्या बला है। देखो ये बात हमेशा याद रखना, इट ऑलवेज स्टार्ट विद स्लैश। ये हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है। इसका हम यूज केस भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ इट ऑलवेज स्टार्ट विद स्लैश। ठीक, देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ऑन द अदर हैंड रिलेटिव पाथ हम जहां पर होंगे वहीं से चालू होगा, मींस इट स्टार्ट सेम वेयर आर वी, इट स्टार्ट विद सेम वेयर आर वी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक cd root और cd डॉट डॉट देन cd home, ये हो गए इसके एग्जांपल। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट पाथ का एग्जांपल भी देख लेंगे। मीन्स जैसे मेरे को रूट में जाना है देन cd स्लैश रूट, मेरे को होम में जाना है cd स्लैश होम स्लैश होम, लाइक दिस। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर प्रैक्टिकल में हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। अभी बस हमको थ्योरी पर ध्यान देना है, थ्योरी भी इंटरव्यू के लिए जरूरी होती है एंड प्रैक्टिकल इज आल्सो मस्ट। प्रैक्टिकल हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ यही था, दो तरीके होते हैं ये हमारा डायरेक्टरी में घूमने के, जाने के दो तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अनदर टॉपिक इज हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन लिनक्स। किसी सॉफ्टवेयर को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स में।
भाई हमारे एंड्रॉइड फोन है, हमारा iOS फोन है, तो हम किसी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसमें? एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर में जाकर, iOS फोन है तो हम ऐप स्टोर में जाकर उसको इंस्टॉल करते हैं। बट लिनक्स में हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर को? भाई विंडोज में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दे रखा है। बट लिनक्स में कैसे करेंगे, तो वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में घुसने से पहले एक छोटी सी चीज है, उसको आप ध्यान रखना। पैकेज मैनेजर। ओके, ये पैकेज मैनेजर किस भला का नाम है वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज एंड्रॉइड। मैंने जैसे बताया कि अगर हमको एंड्रॉइड में कुछ इंस्टॉल करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, एंड्रॉइड के लिए क्या चीज दे रखी है? एंड्रॉइड के लिए है प्ले स्टोर। ओके, सेकंड थिंग, एप्पल। एप्पल के लिए है ऐप स्टोर। थर्ड वन, उबंटू। उबंटू क्या है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। उबंटू के लिए क्या चीज है? एक सेकंड, यहाँ पर एरर लग गया। ओके, उबंटू। उबंटू के लिए क्या है? एपीटी। एपीटी। ओके, फोर्थ वन इज रेड हैट। रेड हैट, रेड हैट के लिए क्या चीज है? रेड हैट के लिए यम। वन, सेंटोस। सेंटोस के लिए क्या चीज है? डीएनएफ। सिक्स वन इज अल्पाइन ओएस। सॉरी, सिक्स वन इज अल्पाइन ओएस। एपीके, एपी, सॉरी एपीके। ठीक है, तो ये हमारे पैकेज मैनेजर्स होते हैं कि कौन कौन सी चीजों में एंड्रॉइड, एप्पल, उबंटू, रेड हैट, सेंटोस, अल्पाइन ओएस, इन सब चीजों में कहाँ से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम काम करेंगे उबंटू पे। ठीक है, क्योंकि लिनक्स में हम काफी सारी चीजों में काम कर सकते हैं, जैसे काली लिनक्स हो गया, बट जो ये सिंपल चीज है, उबंटू इज अ सिंपल वे। ठीक है, तो हम उबंटू में काम करेंगे। इसका क्या पैकेज मैनेजर है इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर को? एपीटी। एपीटी कमांड। एपीटी में काफी सारी कमांड्स होती हैं, एपीटी अपडेट, एपीटी सर्च, एपीटी इंस्टॉल, एपीटी लिस्ट हाइफन हाइफन इंस्टॉल। ये सारी कमांड्स होती हैं एपीटी में, वो भी हम जानेंगे आगे चल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एपीटी की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ ये सब। ये एपीटी की कमांड्स यूज आएगी जब हम मिडलवेयर डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे लिनक्स में। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ आपको, एपीटी कमांड्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। पहली कमांड कौन सी है? फर्स्ट कमांड इज एपीटी अपडेट। सेकंड कमांड एपीटी सर्च इंजनिक्स। थर्ड कमांड एपीटी इंस्टॉल कर दो। किसको करूं? इंजनिक्स को। फोर्थ कमांड एपीटी लिस्ट कर दो। किसको? हाइफन हाइफन इंस्टॉल चीजों को, यानी कि जो हमारे लिनक्स में इंस्टॉल चीजें हैं उन सबको मुझे शो कर दो। तो ये सारी कमांड्स होती हैं एपीटी की। ओके, बोर्ड कर दो इसको। ठीक है, सीटीएल कमांड्स होती हैं, सिस्टम सीटीएल कमांड्स, वो भी लिखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद करना पड़ेगा। भाई जो जो चीजें लिख रहा हूँ वो याद करना है हम सब लोगों को, जब भी काम बनेगा। ठीक है, सिस्टम सीटीएल कमांड्स होती हैं जब हमारा मिडलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि जब हमारा इंजनिक्स इंस्टॉल हो जाएगा लिनक्स में, तो उसको भी स्टार्ट करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है, तो वही सब कमांड्स हैं। लाइक सिस्टम सीटीएल कमांड्स। फर्स्ट कमांड इज सिस्टम सीटीएल स्टेटस। सिस्टम सीटीएल स्टेटस इंजनिक्स के। so the second command is systemctl start nginx. Third command is systemctl stop nginx, stop करने के लिए। Fourth command is enable nginx, enable कर दो। Fifth command is, wait a minute, fifth command is disable कर दो। disable।
इंजीनियरिंग, या कितनी कमांड्स हैं, ज़्यादा नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। ओके, इट्स थोड़ा बड़ा है एंड सिस्टम सीटीएल कमांड को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन लिनक्स, कैसे करेंगे। पैकेज मैनेजर्स होने चाहिए, सबके अलग अलग पैकेज मैनेजर्स होते हैं, हमने पढ़ लिया किस कौन कौन किसका होता है। एंड एपीटी कमांड्स होती हैं कि जब हम उबंटू में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एपीटी होता है पैकेज मैनेजर, और एपीटी की भी कमांड्स होती हैं, एपीटी अपडेट, एपीटी सर्च इंजीनिक्स, एपीटी इंस्टॉल इंजीनिक्स, एपीटी लिस्ट हाइफन हाइफन इंस्टॉल। सिस्टम सीटीएल कमांड्स होती हैं इंजीनिक्स को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, डिसेबल, इनेबल और उसका स्टेटस जानने के लिए वी विल यूज सिस्टम सीटीएल कमांड्स। तो या इन दिस टॉपिक दिस इज सफिशिएंट एंड ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन लिनक्स। ये हमारा हो गया, पैकेज मैनेजर्स हमने देख लिए, एपीटी कमांड्स हमने देख ली, सिस्टम सीटीएल कमांड्स हमने देख ली। ठीक है, तीन टॉपिक हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। ठीक है, पहला वाला हो गया पैकेज मैनेजर्स के थ्रू एंड एपीटी कमांड्स, सिस्टम सीटीएल कमांड्स, तो ये हमारे काफी सारी चीजें एक बार में कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिप्लॉय एनी एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ लिनक्स। दिस इज द मेन टॉपिक दैट वी टॉक अबाउट। ओके, इस टॉपिक में हम जानेंगे जो भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं उन सबका यूज केस कैसे होगा। ठीक है, उन सबका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिनक्स को अपने विंडोज कंप्यूटर में डालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला तरीका होता है WSL, विंडोज सबसिस्टम लिनक्स। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, आपको इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन पावर सेल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, पावर सेल में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इसको अपने को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, देन यस, देन हमारा पावर सेल खुल जाएगा। इसको जूम करके कमांड क्या होती है, WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल। जैसे ही आप ये कमांड डालोगे आपके सिस्टम में WSL इंस्टॉल होने लग जाएगा। ओके, आप ये काम कमांड लाइन इंटरफेस से भी कर सकते हो, WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल, और ये काम आप GUI से भी कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है, देन टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ, इसमें जाना है। आप जैसे ही इसमें जाओगे, जैसे ही हमने IIS वेब सर्वर को इंस्टॉल करा था, याद होगा आप सब लोगों को, हमने कहाँ से करा था, यहाँ से करा था, अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है उसकी। ओके, वैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, आपको इसको क्लिक कर देना है एंड देन आपको इसको ओके कर देना है, आपके कंप्यूटर में WSL इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरा विंडो 11 होम है, इसमें WSL की कमांड्स, WSL इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, ये माइक्रोसॉफ्ट का ग्लिच है। ठीक है, तो उसका भी रास्ता मैं बता दूंगा। तो ये हो गया अपने कंप्यूटर के अंदर लिनक्स डालना। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, जब WSL इंस्टॉल हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना एंड सिंपली यहाँ पर उबंटू डाल देना। जैसे ही आप उबंटू डालोगे उबंटू ये वाला आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। आप उबंटू में WSL चला सकते हो, आपका उबंटू के अंदर पूरे लिनक्स चलेगा, विंडोज के अंदर आपके। ठीक है, सो इट इज अ वेरी सिंपल वे टू यूज लिनक्स एंड विंडोज। ओके, सो ये हो गया अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखने के लिए, जिसके पास में अच्छा पीसी है, हाई एंड पीसी है उसके लिए, और जिसके पास में मैक है वो कैसे कर सकता है ये काम, और जिसके पास में कंप्यूटर नहीं है इतना अच्छा वो कैसे कर सकता है। सिंपल है, सिंपल है। ओपन ब्राउजर, ब्राउजर में हमको क्या डालना है, ब्राउजर में हमको डालना है किलर कोडा। किलर कोड आप जैसे ही डालोगे किलर कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने अपने डॉट डॉट में भी लिख रखा है किलर कोड, तो एल एंड किलर कोड। तो किलर कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको चले जाना है, देन प्ले ग्राउंड्स, देन ये हमको दिखा देगा कि आपको कौन सा प्लेग्राउंड चूज करना है, उबंटू, कुबरनेटिस, कुबरनेटिस प्लेग्राउंड, CKS, CK, ये सारी चीजें हैं, बट हमको अभी उबंटू चाहिए, देन हम उबंटू पे क्लिक करेंगे, सिंपल, एंड हमारा प्लेग्राउंड जैसे ही हम साइन इन करेंगे वैसे हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं साइन इन करके आपको फिर बताऊँ इसमें। ओके, मैंने जैसे साइन इन करा वैसे ही मेरा ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें लिनक्स का यूज करके चला सकता हूँ लिनक्स को। ठीक है, लिनक्स कमांड का यूज करके मैं लिनक्स को ऑपरेट कर सकता हूँ इससे। ठीक है, लाइक मेरे को देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में, सबसे पहले कमांड हमने कौन सी पढ़ी थी, हु एम आई, गैप नहीं है किसी के बीच में भी, इसको चलाएंगे तो इसने बताया आप कौन हो, आप रूट हो। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, भाई मेरे को पता नहीं है, PWD कहाँ है, हाइफन रूट, रूट सबसे मेन डायरेक्टरी होती है। ओके, एंड इसमें मेरे को देखना है कि रूट फोल्डर के अंदर, मैं रूट फोल्डर के अंदर हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं मेरे को देखना है। ls कमांड सिंपली, इसके अंदर फाइल सिस्टम है, मेरे को बैक जाना है, टॉप पर जाना है। जैसे मैं विंडोज में जाता हूँ यहाँ पर GUI में, एंड यहाँ पर देखता हूँ कि विंडोज C मेरे को ऐसा दिखाना है कुछ लिनक्स के अंदर, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, सिंपली CD स्लैश, स्लैश क्या यूज होता है मैंने बताया था ना, एब्सोल्यूट पाथ CD स्लैश 1 2। ठीक है, एंड देन ls करूंगा,
दिखा देगा कि आपके सी ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर हैं। ठीक है, जैसे मैं सी ड्राइव को खोलता हूँ, उसमें दिखा दिया मुझे इसने कि आपके सी ड्राइव में इतने सारे फोल्डर्स हैं। वैसे ही लिनक्स में मेरे को ये दिखा देगा कि मेरे लिनक्स में इतने सारे फोल्डर्स हैं। बिन नाम का एक फोल्डर है, बूट नाम का एक का फोल्डर है, ईपीसी, एलआईबी, एलआईबी 64, मीडिया, ओपीटी, रूट। ठीक है, इन सब फोल्डर्स के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग फोल्डर्स हैं, इनका काम क्या क्या होता है। रूट, रूट एक मेन फोल्डर है। रूट के अंदर क्या होता है, रूट यूजर का घर होता है। जैसे ही मैं लिनक्स खोलूंगा, मैं कहां पर आऊंगा, मैं रूट पर आऊंगा, क्योंकि रूट यूजर का घर होता है। ओके, बिन, बिन फोल्डर, इसके अंदर क्या होता है, चलो जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। चलते हैं बिन के अंदर, पहले हम देखते हैं अभी हम हैं कहाँ पर। अभी हम ऊपर है, सबसे ऊपर है, सी ड्राइव पर है। हमें बिन में जाना है। बिन में हम कैसे जाएंगे, देखो दो मेथड है जाने के बिन में। सबसे पहला एब्सोल्यूट पाथ, दूसरा रिलेटिव पाथ। कैसे हम जा सकते हैं बिन में, सीडी, चेंज डायरेक्टरी करनी है मेरे को, सीडी का यूज करेंगे, सीडी स्लैश एब्सोल्यूट पाथ से जा सकते हैं। बिन, एंटर, हम बिन में आ गए। ठीक है, फिर बैक चलते हैं, सीडी डॉट डॉट, एक फोल्डर बैक हो जाएगा इससे। अभी हम कहाँ पर आ गए, चेक करते हैं। हम फिर रूट पर आ गए, वो रूट का नाम आ रहा है सॉरी, स्लैश पर आ गए, यानी कि सी ड्राइव पर आ गए। फिर चलते हैं सॉरी बिन के अंदर। सो इस बार हम चलेंगे रिलेटिव पाथ से, सीडी, बिन, डायरेक्टली हम बिन के अंदर आ गए। अब हमको देखना है कि बिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मेरे को देखना है कौन कौन से फोल्डर हैं, क्या क्या फाइल्स हैं। तो वो कैसे होगा, एलएस कमांड से। ओ शिट, इतनी सारी कमांड्स, ये क्या चीजें हैं। बिन के अंदर लिनक्स की सारी कमांड्स होती हैं। बिन फोल्डर के अंदर लिनक्स की सारी कमांड्स होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ी कितनी है, वो है कितनी, वो सारी की सारी रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है बस वो सफिशिएंट है। ठीक है, डेवऑप्स में उतना ही सफिशिएंट है, बाकी जो आगे कुछ अपडेट होगा तो वो मैं तो चलूंगा। ठीक है, क्लियर करना है मेरे को, क्लियर, क्लियर कमांड से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखना है मैं कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी। ओके, एलएस से हमने देख लिया क्या क्या होगा, मतलब फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ और कमांड्स की तरफ। सबसे पहले तो बैक शुरू में आ जाते हैं सी ड्राइव में, फिर देखेंगे कौन कौन से फोल्डर है। मेरे मेरे को करना है, मेरे को फोल्डर बनाकर देखना है, और उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। उसके अंदर मैं सीएलआई फाइल एडिटर का यूज करूंगा, नैनो कमांड से। उसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, फिर उसके अंदर मैं देखूंगा कैट कमांड से कि क्या क्या चेंजेस हैं, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये काम करते हैं, हाँ ये काम कर, हम करेंगे होम में जाकर के, घर में जाकर के। ठीक है, घर में चलते हैं, सीडी स्लैश होम। अब हम होम में आ गए, कैसे देखेंगे, पीडब्ल्यूडी से देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है होम के अंदर। एलएस करते हैं, ubuntu है इसके अंदर, केवल ubuntu है। हमको एक फोल्डर चाहिए, एम के डी आई आर, फोल्डर बनाने के लिए एम के डी आई आर कमांड का यूज करेंगे। देन फोल्डर का नाम मैं यूज करता हूँ एक्स वाई जी। ठीक है, तो एंटर करूंगा, एलएस कमांड करके देखूंगा कि कौन कौन से फोल्डर बने हैं। ठीक है, दिखा दिया। ubuntu के अलावा आपके पास में अब एक्स वाई जी फोल्डर भी आ चुका है, पहले केवल ubuntu था। ओके, एक और फोल्डर बनाता हूँ, एम के डी आई आर, देन एबीसी, एबीसी फोल्डर बन जाएगा, एलएस करके देखूंगा। ठीक है, एबीसी फोल्डर आ गया, एक्स वाई जी फोल्डर। ओके, अब हम चलते हैं एक्स वाई जी फोल्डर के अंदर, सी डी एक्स वाई जी। हम एक्स वाई जी फोल्डर के अंदर आ गए, बैक जाएंगे इससे। बैक जाने के लिए सीडी डॉट डॉट, सीडी स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, एंटर, बैक चले गए, एलएस करके देखा, फिर वही तीनों फोल्डर। एब्सोल्यूट पाथ से चलते हैं, सीडी स्लैश एबीसी फोल्डर के अंदर चलते हैं। इसने क्या एरर दिया, इसने एरर दिया सीडी स्लैश एबीसी, नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि हम किसी फाइल और डायरेक्टरी में ही जा सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ से। ओके, हमको इसके अंदर जाना है, देन वी विल यूज रिलेटिव पाथ, सीडी एबीसी। ठीक है, अलग करके देखते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। ओके, फाइल बनाने के लिए टच कमांड, टच, इसके अंदर एक फाइल रखता हूं मैं, भव्य डॉट टीएक्सटी फाइल, टेक्स्ट फाइल सिंपल। ठीक है, एलएस करके देखूंगा, इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल आ जाएगी। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर मेरे को कुछ लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर जैसे मैं नोटपैड में लिखा हूँ विंडोज के अंदर, वैसे मेरे को इसको कुछ लिखना है। अब मैं क्या यूज करूंगा, नैनो भव्य डॉट टीएक्सटी। ठीक है, दोबारा समझते हैं इस बात को। मेरे को ये जो फाइल मैंने बनाई है भव्य डॉट टीएक्सटी, किससे बनाई है, टच कमांड से मैंने फाइल बनाई है। इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है इस फाइल के अंदर, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा, नैनो भव्य डॉट टीएक्सटी। भव्य डॉट टीएक्सटी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरा फाइल का नाम ही भव्य डॉट टीएक्सटी है। दैट्स व्हाई आई राइट भव्य डॉट टीएक्सटी है। ठीक है, जैसे ही मैं ये एंटर करूंगा, मेरा फाइल एडिटर खुल जाएगा। देखा, फाइल एडिटर खुल गया। बैक चलते हैं एक बार, मैं बैक आ गया हूँ। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं, नैनो कमांड है, दोबारा चल के देखते हैं भव्य डॉट टीएक्सटी में कैसे चलेंगे, नैनो भव्य डॉट टीएक्सटी।
pub.txt में आ गए, ठीक है। जैसे ही हमने कमांड चलाया, हम हमारे सामने एक इंटरफेस आ गया नोटपैड का। भाई विंडो का नोटपैड सुंदर होता है, लिरिक्स का नोटपैड काला काला होता है, काली स्क्रीन है भाई ये, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ लिखते हैं लाइक हेलो, दिस इज भव्य प्रताप सिंह, ठीक है। हमको इसको सेव करना है, जो भी हमने लिखा हमको इसको सेव करना है। तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, देख सकते हो आप, एंड देन हमको इसको एक्सेट करना है, देन कंट्रोल एक्स में लिखा हुआ कंट्रोल एक्स एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस करके देखते हैं इस फाइल में कि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सेव हुई हैं या नहीं हुई हैं। नैनो भव्य डॉट टीएक्सटी, देखो सेव हो रखा है हमारा, ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हैं, बैक चलते हैं, कैट कमांड का यूज देखते हैं। कैट कैट कमांड क्या होता है, क्यों यूज होता है कैट कमांड? कैट कमांड होता है देखने के लिए कि नैनो फाइल में क्या रखा हुआ है। कैट भव्य डॉट टीएक्सटी, देखा इसने दिखा दिया कि हेलो दिस इज भव्य प्रताप सिंह, ठीक है। कैट कमांड ने दिखा दिया यहीं पर, फाइल एडिटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने हमको यहीं पर शो कर दिया कि हेलो दिस इज भव्य प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये कमांड होती है फाइल एडिटर की, फाइल एडिटर के अंदर क्या रखा हुआ है उसको शो करने के लिए, ठीक है। अब जैसे एबीसी है, एबीसी के अंदर क्या है, फाइल बनी हुई है भव्य.txt। अब मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है, आई वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो हाउ कैन आई डू दिस? विद द हेल्प ऑफ rm, rm command। I will use rm command here, and then file name भव्य.txt, एंटर। ये फाइल मेरी डिलीट हो गई, एलएस करके देखूंगा, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। एबीसी फोल्डर है, देखो ये दिखा रहा है उबंटू के अंदर हमारे स्लैश होम के अंदर हम एबीसी फोल्डर में है, और ऊपर हम कहाँ पर थे, एबीसी फोल्डर के अंदर हम इस फाइल में थे, भव्य.txt फाइल में। बट अब ये फाइल एलएस करके शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने डिलीट कर दी है, ठीक है। बैक चलते हैं, सीडी डॉट डॉट, सीडी फिर डॉट डॉट में आ गए, एलएस करेंगे। कौन से फोल्डर है, एबीसी फोल्डर है जो हमने बनाया था, उबंटू फोल्डर है जो पहले से क्रिएट हुआ हुआ है। हमको इस फोल्डर को डिलीट करना है भाई। फोल्डर को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, आर हाइफन आर, एंड फोल्डर नेम एबीसी। फोल्डर को डिलीट करना है, देन द कमांड इज आरएम हाइफन आर। फाइल को डिलीट करना है, सिंपली देन आरएम फाइल का नेम, ओके। एंटर दूंगा, एलएस करके देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ उबंटू फोल्डर बचेगा, एबीसी फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम है इनका कमांड का। देन उसके आगे हम देखें तो, या अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कहाँ गया, ये रहा, हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन लिनक्स, ठीक है। हम उबंटू यूज कर रहे हैं, देखिए हम एपीटी 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 का यूज कर रहे हैं। एपीटी की कमांड कौन कौन सी होती है, एपीटी अपडेट, एपीटी सर्च इंजन, ठीक है। सो अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौट के आ जाते हैं कि हाउ टू डिप्लॉय एनी एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ लिनक्स, जिसकी इतनी हम देर से बात कर रहे हैं। घूम फिर के हम उसी टॉपिक पर आ गए कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। लिनक्स के मैंने आपको दो रास्ते बता दिए, WSL, किलर कोड़ा। कहीं पर भी यूज करो, लिनक्स यूज करो, अपने अपने लैपटॉप में यूज करो, अपने पीसी में यूज करो, या फिर किलर कोड़ा पे जाकर कोई दूसरा लैपटॉप पर यूज कर लो, ठीक है। किलर कोड़ा हमको दूसरा लैपटॉप दे देता है थोड़ी देर के लिए, ओके। दूसरा दूसरा लैपटॉप मतलब लैपटॉप हमारा यही रहेगा, किसी और के लैपटॉप पर हम काम कर सकते हैं, मतलब किसी और के पीसी में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बैक टू टॉपिक, हाउ टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन विद हेल्प ऑफ लिनक्स, ठीक है। इसको उठा के लेकर आते हैं नीचे, किलर कोड़ा वेबसाइट पर जाते हैं, देन लोडिंग, वेट, ओके। तो सबसे पहले हमारी कमांड रहेगी nginx को इंस्टॉल करवाना तो लिनक्स के अंदर। वो कैसे होगा, एपीटी कमांड से। ये उबंटू चल रहा है, उबंटू में क्या होता है, एपीटी कमांड होती है, एपीटी अपडेट। फर्स्ट कमांड है एपीटी अपडेट, देन द सेकंड कमांड इज एपीटी इंस्टॉल nginx। इंस्टॉल कर रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है मुझसे, मैंने यस कर दिया। देन ये क्या कर रहा है, ये मिडलवेयर को, nginx मिडलवेयर को मेरे इसमें कंप्यूटर में, लिनक्स में इंस्टॉल कर रहा है, ओके। सो इसने क्या करा अभी, इसने जैसे ही मैंने कमांड हिट करी एपीटी इंस्टॉल nginx, तो इसने क्या करा, इसने मिडलवेयर को क्या करके मेरे लिनक्स पर इंस्टॉल कर दिया, सिंपली जैसे हम अपने फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही ये है। देन हमको कोड चाहिए, अब जैसे हमने IIS वेब सर्वर में करा था कि हमको कोड चाहिए होता है जिसको हम इनिट वाले फोल्डर में डालना होता है। कोड कहाँ मिलेगा, गिटहब पर मिलेगा, गिटहब पर चले जाते हैं, ओके। देन रिपोजिटरी, देन दिस स्टारबक्स क्लोन, ओके। सो IIS वेब सर्वर में क्या करा था, डाउनलोड जिप फाइल करी थी, इसमें क्या करना है, कोड को कॉपी करना है, ठीक है। कोड क्या है, ये है कोड को हमको कॉपी कर लेना है, देन वापस से
किलर कोडा में चलते हैं एंड वहाँ पर हम अभी देख लेते हैं पीडब्ल्यूडी करके हम रूट पे हैं। हमको होम में जाना पड़ेगा। हमको ये कोड होम में कॉपी करवाना है, ठीक है? देन होम में चलते हैं एब्सोल्यूट पाथ से। लेट्स देखते हैं क्या है उबुंटू का केवल इसमें। ये कोड को कॉपी करवाना है, कैसे करेंगे? गिट से करवा रहे हैं क्लोन। देन जो हमने कॉपी करा है कोड को, लिंक को, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, कॉपी हो रहा है, ये हो गया है, ठीक है, डन। तो अब मैं एलएस करके देखता हूँ, तो स्टारबक्स क्लोन आ गया, ठीक है। देखा आपने, स्टारबक्स क्लोन का एक फोल्डर आ चुका है। पहले उबंटू था, बट अब स्टारबक्स क्लोन आ गया है। इस फोल्डर की फाइल्स होंगी इसके अंदर। इस फोल्डर को उठा करके मेरे को लेकर जाना है वैर में। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एलएस करते हैं। हमारा इसके अंदर होता है वैर। ओके, एक फोल्डर होता है वैर। वैर में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। सीडी वैर, एलएस करता हूँ। इसके अंदर क्या है, www नाम से फोल्डर आएगा। www नाम से फोल्डर जब ही क्रिएट होगा जब हम अपने कंप्यूटर में, जब हमने लिनक्स में इंजीनिक्स यानी कि मिडलवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हम मिडलवेयर को इंस्टॉल नहीं करते तो ये www भी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सीडी www करते हैं, एलएस करूंगा, एचटीएमएल में जाऊंगा, सीडी एचटीएमएल, एलएस करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये वाली फाइल आ रही है, डीपीएन फाइल। ओके, तो होम में चलते हैं, सॉरी, सीडी होम, होम में आ गया। लेट्स करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमको इस फ़ोल्डर को उठा करके, ये जो स्टारबक्स वाला क्लोन है, स्टारबक्स क्लोन है, इसको उठा करके वैर में लेके जाना है। वैर के अंदर www देन एचटीएमएल। कैसे लेके जाऊँगा? फ़ोल्डर को उठाने की निंजा टेक्निक क्या होती है? सीपी -r, देन फ़ोल्डर का नेम स्टारबक्स क्लोन मल्टीप्लाई, देन एब्सोल्यूट पाथ से लेकर जाऊँगा। कैसे होगा? एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स विद स्लैश, देन वैर, देन www, देन एचटीएमएल। ओके, सबके बीच में स्लैश लगेगा। एंटर करूंगा। ओके, चल के देखता हूँ उस फोल्डर में आया है या नहीं आया। सीडी स्लैश वेब स्लैश www स्लैश एचटीएमएल, पीडब्ल्यूडी करके देखता हूँ कहाँ पर हूँ मैं। इसे यहीं पर हूँ, वेर www एचटीएमएल में एलएस करता हूँ। देखो, स्टारबक्स क्लोन के अंदर जो फाइलें थी, एक एसेट्स नाम की और एक एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की, ये दोनों फाइलें इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, देन हमारा काम आता है सिस्टम सीटीएल कमांड्स का। टाइप करके देखते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट इंजीनिक्स। सिस्टम सीटीएल कमांड क्या करता है? इंजीनिक्स को स्टार्ट करवाने का काम करता है, स्टॉप करवाने का, इनेबल डिसेबल। स्टार्ट करके देखते हैं। अब जैसे हम आईआईएस वेब सर्वर में जा रहे थे, लोकल होस्ट पर जा रहे थे, लोकल होस्ट पर जाकर हम अपने देख रहे थे हमारी साइट डिप्लॉय हुई है या नहीं हुई है। इसका दूसरा सिस्टम है। इसका सिस्टम ये है कि ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, इसको क्लिक करना है, देन ट्रैफिक पोर्ट्स में हमको जाना है। आफ्टर दैट यहाँ पर हमको पोर्ट्स दिखेंगे, 80 पोर्ट, 80 पोर्ट, कस्टम पोर्ट्स हम बना सकते हैं, बट हमको कहाँ जाना है? 80 पोर्ट में जाना है। हम देखेंगे हमारी साइट डिप्लॉय हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन, हमने ये काम लिनक्स से भी कर लिया है। ओके, वापस चलते हैं क्लियर कोड़ा में एंड यहाँ पर कमांड डालूंगा, सिस्टम ctl स्टॉप nginx, एंटर। एंड अब चल के देखते हैं। ओके, अभी भी दिखा रहा है। ओके, सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा वैसे ही बैड गेटवे उसने दे दिया। ठीक है, यानी कि मैंने nginx को ऑफ कर दिया, मिडलवेयर को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, सिस्टम ctl, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ एंड वी विल गो अगेन एंड रिफ्रेश दिस पेज। तो हमारी साइट डिप्लॉय हो चुकी है। हम स्टेटस भी देख सकते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस nginx। स्टेटस में क्या दिखा रहा है? ये हमको इनेबल दिखा रहा है, इनेबल। ठीक है, सारी चीजें इनेबल है, सेव है। ठीक है, तो यही था गाइस हमारा लास्ट वाला टॉपिक। इन सब कमांड का यूज ऐसे होता है साइड को या फिर किसी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। मिडलवेयर काफी मेन चीज होती है। ओके, और मिडलवेयर के और भी काफी सारी चीजें पार्ट्स होते हैं हमारे लिनक्स में। जैसे हमने अभी यूज करा इंजीनिक्स का, इंजीनिक्स टॉप पर चल रहा है इस टाइम पे। देन हमारा सेकंड अपाची, देन टॉमकैट। हम वो चीज करेंगे जो ट्रेंड में है। ठीक है, हमने इंजीनिक्स से ही काम कर लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।